So once again, a great good afternoon to everyone present in the session. This is your course instructor, Khushwant Patnani. With all of you, we are starting the class for the day. But before we do, we have a short prayer and short meditation session. Let us join our hands, close our eyes, and pray. Dear God, we thank you for this life and all its blessings. We thank you for providing us food, shelter, and clothing. Dear God, thank you for all the guidance, support, and motivation we are receiving from our parents, friends, and our mentors. Dear God, thank you for all the good health, wealth, and wisdom. Thank you for the dream you have placed in my heart. Thank you that with your grace, I am being able to. Dear God, thank you that with your grace, I am being able to put in my honest efforts so that I am clearing IIT JEE, that is JEE Advanced, in the year 2022 in flying colors and getting admitted into the best IIT of my dreams. I thank you in advance for becoming a great engineer in times to come. Dear God, thank you in advance that I have cleared NEET 2022 and have got admission into the best medical college of the country. Thank you that I am serving as one of the best doctors in the country. Thank you in advance. Thank you, thank you, thank you. With a broad smile on the face, we all may open our eyes. हम सभी मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं. So I think now everyone has arrived. All right, class, let us begin. All right. So, okay, let us start off with some general queries one by one, right? Okay, ठीक है. तो पहली चीज, आप लोगों के लिए जितने भी आपके लेक्चर्स थे, राइट, जो इसके पहले हुए हैं, लाइक जैसा मैंने कहा था, फ्रॉम द चैप्टर्स लाइक वेक्टर्स, फ्रॉम द चैप्टर्स लाइक मैथमेटिकल टूल्स, ऑल ऑफ देम, राइट, मोस्ट ऑफ देम, राइट, हैव बीन अपलोडेड on the YouTube channel. लेकिन those videos will be available only by you people, right? Because you are a part of this course, right? So those videos will only be available to you people, and you all can access those videos from today onwards. I'll be sending you all the link by today afternoon or evening, like very shortly, right? Almost all videos are ready, and this is one announcement, right? Second announcement is about your test, right? So आप लोगों के टेस्ट रिजल्ट्स देखे मैंने, आप लोगों के आंसर्स देखे, राइट? बट देन आई फील कि कहीं ना कहीं उसमें जरूरत है आप लोगों के आंसर्स के साथ साथ आपकी आंसर शीट देखने की, राइट? तो अब हम अगली बार से क्या कर रहे हैं, जो भी आप लोग टेस्ट दोगे ना, आपका जो रफ वर्क है मैं वो देखना चाहता हूँ. सी आई टेल यू वेरी वन ब्यूटीफुल थिंग.
So I am talking about test taking strategy या टेस्ट गिविंग स्ट्रैटेजी, whatever. Taking is टेस्ट देना, right? So I'm talking about it. देखो क्या होता है, टेस्ट हम सबसे पहले क्यों देते हैं? Why do we take a test, right? पहला उसका पर्पस होता है आप लोगों के लिए आपकी प्रेपरेशन को टेस्ट करना. The primary purpose is to test your preparation. कि भाई बच्चे ने कितनी मेहनत की है और वो कितना प्रिपेयर कर पाया है, राइट? दिस इज वन थिंग. अब ना प्रिपरेशन सिर्फ नॉलेज वाइज नहीं करनी है, प्रिपरेशन कॉन्फिडेंस वाइज भी करनी है. और ये प्रिपरेशन सिर्फ टेस्ट देने से ही हो सकती है. मैंने क्या कहा? टेस्ट देने से ही हो सकती है. तो कैन वन ऑफ यू टेल मी मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कैन वन ऑफ यू इल्यूसिडेट, बीरज, कि टेस्ट की प्रिपरेशन कब हो सकती है? जब आप टेस्ट दो. अरे सर ये कैसे बोल रहे हो, क्या बात बोल रहे हो? यू कैन प्रिपेयर वेल if you appear for tests often. Okay. So क्या वीरज इसके बारे में कुछ बोल सकते हो जो मैंने अभी कहा? ये हम ना बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, इट्स अ वन टाइम डिस्कशन कि टेस्ट आप लोगों को कैसे देना है, राइट? क्योंकि आपका पहला टेस्ट एक्सपीरियंस था विद अस, राइट, हियर इन द क्लास. सो इसीलिए कुछ बहुत खास मुद्दे डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों के साथ. क्योंकि क्या होता है, अभी तक क्लास 10th तक आप लोगों को एक अलग फॉर्मेट में टेस्ट देने की आदत थी. अब हम लोग एक ट्रांजिशन कर रहे हैं. तो इस टेस्ट का फॉर्मेट क्या था हम सभी देख चुके हैं. क्लास 10 तक हम लोग कैसे टेस्ट देते थे कि हम बड़े बड़े एसेज लिख के आते थे स्कूल में, चीजों को रट लेते थे, लिख के आ जाते थे, मार्क्स आ जाते थे. लेकिन अब एक ट्रांजिशन है. ट्रांजिशन किस बात में? सबसे पहले फॉर्मेट चेंज हो गया टेस्ट देने का. पहले हम सिर्फ थ्योरेटिकल आंसर्स लिख के आते थे और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल बनाते थे. लेकिन अब क्या हो गया है? अब हो गया है कि आपको कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा, है ना, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे. तो मैं चाहता हूं वीरज ये बताओ कि आपको क्या लगता है टेस्ट देना क्यों जरूरी है टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए? क्योंकि आप तो टेस्ट देने वाले हो यहां से 2 साल बाद, लेकिन उसके लिए ये सब टेस्ट क्यों दे रहे हो? राइट, वीरज बोलो. सर अगर अपन टेस्ट नहीं देंगे तो वैसे क्वेश्चंस बनाने की प्रैक्टिस नहीं होगी. बिकॉज एक सबसे बड़ी चीज होती है प्रैक्टिस. प्रैक्टिस इज द कीवर्ड. कि ना क्या होता है, आई टेल यू वन थिंग. क्योंकि मैं भी उसी जगह पर था यहां से सपोज कई साल पहले, 10 साल 15 साल जो भी कह लो, राइट, जहां पे अभी आप खड़े हैं, राइट. सो इसीलिए उस सिचुएशन को मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूं कि क्या होता है. सो व्हाट हैपेंस इज कि प्रैक्टिस करने का तरीका इज नॉट जस्ट कि फैकल्टी क्लास में पढ़ाए. इसके लेवल होते हैं. देखो प्रिपरेशन के, मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ प्रिपरेशन के क्या लेवल है. इसको सब लोग अपने पास कॉपी में लिखेंगे, ठीक है? या मूवी नहीं चल रही है, इसको कॉपी में लिखना है, जॉट डाउन करना है. इट्स समथिंग, इट्स अमृत, राइट? आप लोगों को हमेशा ये जानकारी नहीं मिलने वाली. एक बार अमृत मंथन हो गया तो उस समय जो नॉलेज निकल गया वो आ गया, राइट? तो इसको सब लोग लिखेंगे. ओके. सो प्रिपरेशन का क्या तरीका होता है? तो आप कोई भी एग्जाम दे दो, राइट? अभी आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, राइट? सो लेट्स से सबसे पहला तरीका होता है कि भाई बच्चा लगन के साथ, फुल फोकस के साथ क्लास अटेंड करे. फोकस्ड अटेंशन इन क्लास, ये पहला स्टेप होता है ना? अच्छा, इसके लिए एक और तरीका हो सकता है. कई बच्चे बोल सकते हैं सर हम फोकस कैसे करें, कई बार लिखना भी पड़ता है, साथ साथ में देखना भी पड़ता है. तो उसके लिए सुझाव क्या है? सुझाव ये कि क्लास अटेंड करते समय जरूरी नहीं है हर चीज लिखो अपनी लेक्चर कॉपी में. कुछ कीवर्ड्स लिख लो, कुछ फॉर्मूलाज लिख लो, राइट? और मैंने जो कुछ ऐसा कहा जो लिखा नहीं, राइट, वो भी लिख लो कीवर्ड्स के फॉर्म में. फिर अगला स्टेप आपको क्या करना है कि क्लास के खत्म होने के बाद आपने क्लास के दौरान ना स्क्रीनशॉट ले लेना है जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उस बोर्ड के,
राइट? और क्लास के खत्म होने के बाद उन स्क्रीनशॉट्स को दोबारा से देखना है और फिर अपने नोट्स पूरे कर लेने। आप बोलोगे सर ऐसे तो डबल डबल लिखना पड़ेगा। जो बच्चा, अगर आप इस वक्त इस भारत देश के, you go and talk to the toppers of the country, they have a habit of revising their lectures at least 2 to 3 times before coming to the next class. वो बच्चा जो इस वक्त देश में एम्स का एग्जाम टॉप करता रहा है, नीट का एग्जाम टॉप करता रहा है, जिपमर का पेपर टॉप करता रहा है, वीआईटी ट्रिपल ई टॉप करता रहा है, बिट्स पिलानी टॉप करता रहा है, जेईई मेंस और जेईई एडवांस टॉप करता रहा है, ऐसे सारे बच्चों का जब आप रिव्यूज लोगे तो उनका सेकेंड स्टेप होता है रिविजन करना। जो भी क्लास में पढ़ाया गया उसको रिवाइज करना। अब ये रिविजन दो तरह से हो सकता है, या तो आप सिर्फ पढ़ लो, यू जस्ट रीड द कंटेंट्स, है ना, ये एक तरह का रिविजन हो सकता है। दूसरी तरह का रिविजन हो सकता है राइट वॉट एवर यू हैव रिटन, राइट, राइट इट डाउन, उसको दोबारा लिखो। और वही सबसे अच्छा तरीका है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि साइंस सेज द मोर यू राइट, क्या हो जाती है, आपकी क्लैरिटी बढ़ने लगती है, दिमाग उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझता है अगर आप उस चीज को लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लिखते हैं। याद करो, पहली बार लाइफ में डॉग, कैट, बॉल, इन सब की स्पेलिंग कैसे सीखी थी? क्या सिर्फ बोल के सीखी थी? नहीं, लिख लिख के सीखी थी, हाँ या ना, राइट? तो वैसे ही हमें अभी भी करना है, जितना लिखोगे चाहे मैथ्स हो या लिटरेचर, उतना अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट ले लो, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन या निकोला टेस्ला। आप ऑनलाइन जाएंगे ना तो आपको इनके नोट्स मिलेंगे, आइंस्टीन के, निकोला टेस्ला के, इनके नोट्स देखो। You will see that these people have a habit of jotting down what they are thinking. जितना इंसान जो सोच रहा है वो लिखता है, उसका मेमोरी पावर, उसका अंडरस्टैंडिंग, हर चीज बढ़ता है। तो अंडरस्टैंडिंग भी increases, your clarity also increases, and your memory also strengthens. So your memory also strengthens, है ना, स्ट्रॉन्ग हो जाओगे मेमोरी वाइज जितना अपने लेक्चर का अभ्यास करोगे, राइट? दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, थर्ड स्टेप क्या है फिर? थर्ड स्टेप होता है जो आपको क्वेश्चंस कराए गए क्लास में, राइट, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस, जो मैं या तो आपको सम्स दे रहा हूं, राइट, उससे जुड़े हुए सॉल्व्ड एग्जांपल्स बनाओ। सॉल्व्ड एग्जांपल्स को दोबारा सॉल्व करो, लाइक यानी कि आपकी बुक से जो भी आपका मटेरियल दिया गया है या फिर बुक दी गई है, उस बुक से या उस मटेरियल से दोबारा सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देख के बनाओ। सी एंड सॉल्व, भले कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले कोशिश करो कि खुद से बन जाए, नहीं बनता है तो देख कर बना लो, लेकिन लिखो उसको अपनी कॉपी में। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे सर दिया तो है, नहीं दिया हुआ है तो क्या हो गया, दिया हुआ है तो भी लिखना है, राइट? दिस इज द की, ध्यान से सुनना। देन अगला स्टेप होता है जो आपको किताबें प्रिस्क्राइब की गई है, जैसे डीसी पांडे की ऑब्जेक्टिव अप्रोच, जैसे एचसी वर्मा, है ना, इन किताबों से सबसे पहले आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स बनाने हैं, राइट? पहला काम है सॉल्व्ड एग्जांपल्स बनाने हैं। सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी दो तरह के होते हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल, जैसे जस्ट अ सेकंड। यस क्लास, हैव अ लुक कि मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं कि हमें कैसे पढ़ना है। हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हो, राइट? आई अप्रिशिएट इट। इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग इट ऑलरेडी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मे बी यू विल बी एबल टू ऐड फ्यू थिंग्स एज आई से इट नाउ। तो देखो, अब जैसे, राइट, जैसे आपके पास ये चैप्टर है, राइट, सो दिस इज व्हिच बुक? दिस इज डीसी पांडे ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो अब इस बुक में आपके पास जब चैप्टर को समझाया गया है, देखो चैप्टर को समझाया गया है, तो चैप्टर को समझाते वक्त, जैसे आई टेक एन एग्जांपल,
they have taught you about different errors, ठीक है? तो error समझाते वक्त they have talked about different examples. देखो example number 1.4, 1.5, right? तो इनको कहते हैं in text examples. क्या कहते हैं? In text examples. फिर उसके बाद एक बार जब चैप्टर खत्म हो जाता है, right, when the chapter ends, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस होते हैं. ये देखो, या इनको लिखता है ये बुक वाला एडिशनल एग्जाम्पल्स, लाइक पब्लिशर ने आपको बताया दीज आर एडिशनल एग्जाम्पल्स. फिर उसके बाद इसी में देयर आर सम एनसीईआरटी सिलेक्टेड क्वेश्चंस. देखो एनसीईआरटी सिलेक्टेड क्वेश्चंस, तो आपको इनको पढ़ना नहीं है, मैथ्स को या फिजिक्स को पढ़ते नहीं है, पढ़ते पढ़ते लिखते हैं, राइट? सो वी हैव टू राइट डाउन ऑल ऑफ दिस एज वी आर प्रैक्टिसिंग इट. देखो क्वेश्चंस दिए हैं, हमको इनको पढ़ना है. अब वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं. देखो ये हमारी बुक है एच.सी. वर्मा. देखो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द बुक, राइट? तो अब हमको क्या करना है, हमको जैसे हमने चैप्टर खोला, ठीक है, तो हम ओपनिंग लेट्स से इट्स सेकेंड चैप्टर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है? तो आई एम टेलिंग यू वन थिंग. देखो ये रहा, ओके. इसमें भी वही सेम एग्जांपल देखते हैं. देखो यहाँ पर इन्होंने बताया है अबाउट एरर्स इन मेजरमेंट, राइट? एरर्स इन मेजरमेंट के बारे में बताया और साथ साथ में एग्जांपल्स दिए हैं. तो इसको कहते हैं इन टेक्स्ट एग्जांपल. मतलब टेक्स्ट समझाते समझाते ऑथर क्या करता है, आपको कोई कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है और उसका एग्जाम्पल देने के लिए इन टेक्स्ट एग्जाम्पल देता है. और वैसे ही जब एच.सी. वर्मा का एक चैप्टर पूरा हुआ, देन जैसे वहां पर एडिशनल एग्जाम्पल थे डी.सी. पांडे में, आपको एच.सी. वर्मा में मिलेंगे वर्कड आउट एग्जाम्पल्स, है ना? तो वर्कड आउट एग्जाम्पल्स बनाने हैं. उसके बाद वर्कड आउट क्या बनाने, एग्जाम्पल्स बनाने हैं. दिख रहा है सबको, है ना? अब क्यों बनाने हैं ये देखते हैं. देखो तो ये हमने सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स क्यों बनाए, उसका पर्पस है, सभी लोग देखेंगे. उसका पर्पस है दैट व्हेन यू सॉल्व अ सॉल्व्ड एग्जांपल्स, आपके दिमाग के अलग 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 दरवाजे खुलने लगते हैं. कौन कौन से दरवाजे? आपको अप्रोच क्लियर होने लगती है कि भाई कोई क्वेश्चन को मुझे टारगेट कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है, राइट? योर अप्रोच गेट्स क्लियरर एवरी टाइम यू मेक अ क्वेश्चन, योर अप्रोच बिकम्स क्लियरर, राइट? साथ साथ में आपको फॉर्मूला जुबान पे रटा जाते हैं. मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बार बार एक फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा. जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहां लेते हैं, जैसे अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो, कि जब भी कभी हमारे पास एक वेरिएबल है z, वो दूसरे कुछ वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, जैसे a पावर a, b पावर b अपॉन c पावर c, ठीक है? अब मैं निकालना चाहता हूं कि भाई फ्रैक्शनल एरर इन z बाकियों के एरर पर कैसे डिपेंड करेगा. फ्रैक्शनल एरर इन z क्या होगा? सबसे पहले तो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा z अपॉन z will be given by a times of delta a upon a plus b times of delta b upon b plus c times of delta c by c, right? तो अब हमने अलग अलग तरह के ऐसे एक फॉर्मूला देखा. अब इस फॉर्मूला का अप्रोच हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग हो सकता है. जैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग अलग हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे z इज इक्वल टू x पावर 1/3 इंटू y पावर -2 होल बाय रूट ऑफ a दे दिया, तो अब कोई बच्चा क्या कर सकता है, इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो सकता है. तो एच.सी. वर्मा क्या करती है, या ये एग्जाम्पल्स को देख के सॉल्व करने से क्या होता है, आपका दिमाग खुलने लगता है कि अच्छा बुक में ऑलरेडी आपको ऐसा एक एक्सप्रेशन दे देगा कि भाई देखो डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू 1/3 ऑफ x, है ना, 1/3 ऑफ x. अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, x पावर 1/3, राइट, होल बाय a पावर 1/2 इंटू y का पावर 2. क्यों? क्योंकि y नीचे चला गया डिनोमिनेटर में, राइट? तो हमारे पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा. तो मैं लिखूंगा 1/3x प्लस 1/2, इनफैक्ट नॉट x, आई विल राइट दिस एज डेल्टा x by x, राइट? दैट इज फ्रैक्शनल एरर इन x. उसी तरह से हाफ ऑफ
डेल्टा ए बाय ए प्लस 2 टाइम्स डेल्टा वाई बाय वाई। तो अब ऐसा लिखना आपको, जैसे ही आप इसको लिखोगे अपने कॉपी में, ये जो भी मैंने आपके सामने लिखा, अचानक से दिमाग में बत्ती चलेगी, अरे अरे ये चीज मैंने माइनस लिख दिया था यार। पहले तो मैं तो पहले यहाँ पे क्योंकि y में माइनस लिखा हुआ था इसीलिए मैं माइनस लेके चल रहा था। ओह, तो y में माइनस नहीं आएगा, यहाँ y में तो प्लस आएगा यार। ओके ठीक है, तो इसको कहते हैं रियलाइजेशन होना। कोई गलती हो गई तो समझ में आया कि अच्छा यहाँ गलती हो गई, अब क्या होगा। तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आपको एक बार रिविजन करना ही है, ये तो फर्स्ट रिविजन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ एक बार रिविजन कर लिया बस, नहीं। जब आपने पहली बार सारे फॉर्मूलाज बनाए, सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स बनाए, तो फर्स्ट रिवीजन हुआ, राइट। अभी इसके बाद क्या करना है, सेकंड अप्रोच क्या होगी हमारी। अभी हम डीसी पांडे कर रहे हैं ना, एचसी वर्मा में हम सिर्फ सॉल्व्ड एग्जांपल्स बनाएंगे अभी। इस यहाँ तो आप लोगों के चैप्टर्स की शुरुआत हो रही है ना। तो अगर अभी एचसी वर्मा नहीं छुई है तो कोई बात नहीं, यहाँ से उसका आरंभ कर दो, राइट। आपके पास अगर एचसी वर्मा नहीं है तो एचसी वर्मा रखो। ये एक ऐसी किताब है जिसको आप कह सकते हो कुरान है ना। एचसी वर्मा और डीसी पांडे आर लाइक कुरान, दे आर लाइक भागवत गीता, दे आर लाइक गुरु ग्रंथ साहब, है ना। फिजिक्स के लिए ये ऐसा होली बुक है, तो ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, दोनों किताबें। अब ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हैं हम कि हमने क्या किया, अभी सॉल्व्ड एग्जांपल्स तक पहुंच गए, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर हमारा 5 होगा कि जितने भी अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस हैं, राइट, उसमें से लेवल 1 पहले बनाना है, लेवल 2 उसके बाद बनाना है। ये किसकी बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू फिजिक्स की बात हो रही है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बात हो रही है। लिख लो सब लोग, ये तो एक बात हो गई। अच्छा, अब एचसी वर्मा कैसे सॉल्व करनी है सर। एचसी वर्मा हमें ना थोड़ा सा आराम से शुरू करनी है, क्यों, क्योंकि अगर आप एक ही चैप्टर का लेवल 1, लेवल 2 और एचसी वर्मा सब एक साथ बनाते जाओगे ना, हो सकता है इससे आपके पास समय कम पड़ जाए और काम बढ़ जाए कि भाई ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो आप हो सकता है वही करते रह जाओ। तो अपन एचसी वर्मा के सॉल्व्ड एग्जांपल्स को अभी करेंगे और उसके अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस के लिए अलग से टाइम सेट करेंगे जहां पे हम वो करना शुरू करेंगे। उससे क्या हो जाएगा, आपका सेकंड रिवीजन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, आप लोगों का सेकंड रिवीजन हो जाएगा जैसे ही आप एचसी वर्मा सॉल्व करना शुरू करोगे। तो एचसी वर्मा से आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच तो उतना हो सकता है ज्यादा फोकस ना हो। लेवल 1 और लेवल 2 इन ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपको एमसीक्यू सॉल्व करना सिखाएगा, राइट। एचसी वर्मा में देखो किस तरह से क्वेश्चंस हैं, आई विल टेल यू। यू हैव ऑब्जेक्ट, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं हर चैप्टर में। एडिशनल एग्जांपल्स के बाद 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव 1, राइट, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव 2। यहाँ क्या होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो ये क्वेश्चंस ना जब आप नीट के और आईआईटी के टॉपर से बात करोगे, उनके इंटरव्यूज देखोगे यूट्यूब पे, तो वो आपको बताएंगे कि भाई ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अधिकतर बच्चे छोड़ देते हैं, हमको ये क्वेश्चंस नहीं छोड़ने। इससे हमारा ऑब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस होगी, लेकिन नंबर कम है इसलिए सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। जैसे अगर ये 5 क्वेश्चन है, सपोज ये 6 क्वेश्चन है, ऐसा तो ये करना है। उसके बाद इसमें एक्सरसाइजेस है, एक्सरसाइजेस में आपके पास सिर्फ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसके पास पीछे आपको सॉल्यूशंस दिए हैं इनके। सो यू हैव टू सॉल्व एक एक करके, है ना, मतलब स्ट्रैटेजी वाइज। अभी हमको सिर्फ एक चीज पे टिकना है, क्या, सॉल्व्ड एग्जांपल्स दोनों बुक के, राइट। और अगला क्या करना है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच। एचसी वर्मा पे भी आएंगे, राइट, लेकिन एचसी वर्मा के अभी सिर्फ सॉल्व्ड एग्जांपल्स बनाने हैं। अभी उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को थोड़ा समय देना है, जब तक हम वेक्टर्स, काइनेमैटिक्स थोड़ा आगे बढ़ जाएं, फिर वापस एचसी वर्मा पे कूदना है। तो क्या होगा, आपका चैप्टर चल रहा होगा रोटेशनल मैकेनिक्स, लेकिन आप साथ साथ में क्या कर रहे होगे, एचसी वर्मा का काइनेमैटिक्स। तो आपके दोनों चैप्टर्स थोड़े थोड़े साइमल्टेनियसली चलेंगे, तो दिमाग को आदत हो जाएगी एक बार में अलग अलग चीजों को डील करने की, राइट। तो हमारा ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जिसको हमको फॉलो करना है, राइट। अच्छा, जब भी कभी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तब आपको सेल्फ का टेस्ट लेना है। सेल्फ का टेस्ट लेना है का क्या मतलब है कि भाई आपके पास एक बार आपने पहले तो बिना टाइम देखे क्वेश्चन बनाया फर्स्ट टाइम, राइट, लेकिन जब आप अब ये सॉल्व करना शुरू कर रहे हो लेवल 1 और लेवल 2, जब तक एग्जांपल्स बनाए तब तक टाइम नहीं देखा, लेकिन जब लेवल 1 और लेवल 2 बनाने बैठे तब अपने सामने टाइमर ऑन किया।
पहला काम क्या करना है, टाइमर ऑन कर देना है। सबके फोन पे हैं, घरों पे हैं वॉचेस, राइट? तो अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, जिनके पास हो बुक वो खोल के देख सकते हैं। हमारे पास लगभग लेवल 1 में देयर आर 90 क्वेश्चंस, है ना, 90 क्वेश्चंस है। तो अब 90 क्वेश्चंस को देख के ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे को सब 90 क्वेश्चन एक दिन में करने हैं, नहीं। आप इसको डिवाइड कर लो, आप इसको डिवाइड कर लो 45 के 2 सेट में मे बी, या 10 के 9 सेट्स में, और अपने पास टाइम लिमिट रखो कि जैसे मेरे पास ये 45 क्वेश्चंस है ना, तो मुझे 1.5 से 2 मिनट, है ना, कभी कभी 1.5 से 2 मिनट, और अगर लगता है कि मेरी स्पीड अभी बहुत कम है, मुझे 5 से 10 मिनट लग जाता है एक क्वेश्चन बनाने में, तो भले वो ही उसी स्पीड के हिसाब से, जो भी अभी स्पीड है उस हिसाब से अपने लिए टाइम सेट करो। क्या सेट करो कि देखो भाई मेरे पास अगर 1 घंटे का समय है, ठीक है, तो मैं इसको वेस्ट नहीं करूंगा या वेस्ट नहीं करूंगी। कैसे बचाना है समय को, अपने पास टाइम स्लैब रख लो, राइट? तो जैसे जेई के पेपर में आपके पास 20 क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स के, राइट? आपके पास नीट के पेपर में 45 क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स के, राइट? तो अब आपका क्या स्टेप होगा? अब ऑफ कोर्स यहाँ पे 20 क्वेश्चंस हैं, तो हर क्वेश्चन में हो सकता है लगभग 3 मिनट का समय लगे, है ना? यहाँ 45 क्वेश्चंस है, तो हो सकता है हर क्वेश्चन में आपको 1 मिनट का समय लगे। 3 मिनट पर क्वेश्चन, यहाँ पे 1 मिनट पर क्वेश्चन। और इसी वजह से क्वेश्चंस का लेवल उतना मैथमेटिकल नहीं होगा, राइट, नीट में, जबकि जेई में थोड़ा ज्यादा मैथमेटिकल होगा, राइट? लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, ये याद रखना है, राइट? ये याद रखना है हमेशा। तो आपको अपने लिए टाइम सेट करना है आपकी एम के हिसाब से कि भाई मेरा एम क्या है, उस हिसाब से मुझे अपना टाइम सेट करना है, राइट? कि मैंने अपना टाइम सेट किया कि सपोज मेरे पास 1 घंटे का समय है, तो मैं क्या करूंगा, इस 1 घंटे में कम से कम कोशिश करूंगा कि मुझसे 30 क्वेश्चन बन जाए, 30 क्वेश्चन। लेकिन सपोज वो बहुत बड़ा एम रख दिया मैंने, तो भाई रख दो 20 क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, इतना तो रख ही सकते हैं। वो भी नहीं तो चलो 10 क्वेश्चन बन जाएं। कोई भी एक टारगेट चुनो, है ना, कोई भी एक टारगेट चुनो, टाइमर लगाओ, क्वेश्चन बनाने लगो। और हमेशा अपन को क्या आदत बनानी है, क्वेश्चन बन जाए, इफ गेट सॉल्व, है ना, अगर वो बन रहा है बनाओ, टिक करो, अटकना नहीं है, राइट? उसी तरह से फिर नहीं बन रहा है तो लीव एंड प्रोसीड उस समय के लिए, while taking the test, while taking the test। बेसिकली इसके कहने का क्या मतलब हो गया, देखो वापस फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं जो मैंने कहा था। क्या कहा था कि अगर टेस्ट देना है यहां से आने वाले 2 साल के बाद, जब आप जेई का पेपर देना चाहते हो, सफलता चाहते हो उसमें, तो उसका तरीका है कि पढ़ाई ही टेस्ट के अंदाज में करो, है ना? कि भाई एक बार तो सॉल्व एग्जाम्पल अच्छे से बना लिए, लेकिन अब अगली बार क्या करना है, अगली बार क्या करना है कि जब भी मैं लेवल 1 और लेवल 2 बनाऊं, है ना, तो उसको इस फॉर्मेट में बनाना है कि उस फॉर्मेट में बनाना है कि जैसे मैं टेस्ट ही दे रहा हूं, है ना? तो आई विल टॉक टू यू अबाउट वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ही इज माय कलीग, ही हैज आई थिंक ही वाज इन आईआईटी कानपुर और खड़गपुर, सो इट इज हिज वर्ड ऑफ एडवाइस कि जब भी कभी आप टेस्ट देते हो ना, I think his surname was Goswami. So what, he was our senior when we were preparing. तो है ना, तो हम लोगों ने उनसे एक बात सीखी थी जो मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ कि whenever you prepare, है ना, whenever you prepare, do it as you are giving your exam, as you are giving your exam। क्लियर हुआ कि जैसे आज भी अगर आप कोई एक एग्जाम, अगर आप आज भी घर पर बैठकर सॉल्व करते हो सपोज कुछ भी, ठीक है, तो या तो मैंने कहा जैसे अगर आप घर पे आज भी बैठ के कुछ सॉल्व करते हो, तो उसको ऐसे सॉल्व करना है जैसे मेरा आज ही पेपर है, मेरा पेपर ही चल रहा है।
ये भाव आया ना जैसे मन में, अपने आप आपका स्पीड और एक्यूरेसी लेवल दोनों बढ़ने लगेगा। तो इससे क्या एडवांटेज होगा और अपना एम क्या है कि अपनी स्पीड बढ़ जाए, क्या हो जाए, अपनी स्पीड इंक्रीज हो जाए। और अगर मैं कोई क्वेश्चन बनाऊंगा तो वो गलत नहीं होगा। ऐसे मेंटालिटी से मुझे बनाना है कि ऐसा भी नहीं कि इतनी हड़बड़ किए बनाने के चक्कर में कि क्वेश्चन ही गलत हो गया, नहीं। तो आई हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। और जब एक बार मैंने लेवल 1 लेवल 2 इस तरीके से बना लिया अपना टेस्ट लेते हुए, राइट, अपना टेस्ट लेते हुए, फिर मेरा अगला स्टेप होना चाहिए कि कम से कम हर 1 से 2 हफ्ते में जो भी मैंने 1-2 हफ्ते पहले पढ़ा था उसके 5 से 10 सम ले लिए। और कैसे लिए? अब आप बोलोगे सर मैं 90 क्वेश्चन फिर से बनाऊं, कैसे सिलेक्ट करूंगा इसमें से? इसमें से आपको ऐसे सिलेक्ट करना है, एक पेंसिल लेके बैठना है जब भी बनाना है ना। उस पेंसिल से 3 शब्द मार्क कर लो, टेक 3 वर्ड्स और 3 लेटर्स। वीई, वीई इज वेरी इजी। फिर अगला है इजी, फिर अगला है चैलेंजिंग, है ना। हार्ड शब्द यूज नहीं करना है कहीं भी। अपन को अपनी मेंटालिटी में हार्ड कुछ है ही नहीं, हार्ड होता ही नहीं कुछ, मेरी डिक्शनरी में तो नहीं होता। जो भी है या तो चैलेंजिंग है या इजी है या वेरी इजी है ना। तो जो हमसे क्वेश्चन एक बार में बिल्कुल भी नहीं लगे, है ना, क्वेश्चन हिला ही नहीं मुझसे, तो उसको मैं नाम दे दूंगा सी, यानी कि चैलेंजिंग क्वेश्चंस। लिखो सब लोग, चैलेंजिंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन इजी है उसको मैं नाम दे दूंगा इजी, मतलब बन गए। हाँ, थोड़ा उसको दिमाग लगाना पड़ा, थोड़ा उसमें दिमाग लगा बट बन गए, ठीक है, वो हुए इजी क्वेश्चन। फिर आते हैं वेरी इजी क्वेश्चंस। अब ये वेरी इजी क्वेश्चन क्या है भाई? वेरी इजी क्वेश्चन है कि देखते ही जुबान से जवाब निकला, अरे मैंने क्वेश्चन देखा, अरे सर ये होगा, अरे सर ऐसा होगा। ये क्वेश्चन हो गए वेरी इजी, ठीक है। सो हमने क्या किया, अब 3 लेटर्स की मदद से अपने क्वेश्चंस को क्लासिफाई कर दिया, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। कैटेगरीज में बांट दिया, कैटेगराइजेशन जो भी कह लो, है ना, क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन, है ना। तो इससे क्या मदद मिलेगी कि आपकी बुक में मार्क्ड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 क्वेश्चन किए, ठीक है, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, ठीक है। तो अब 10 क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन हार्ड होगा ऐसा तो नहीं है ना, या हर क्वेश्चन चैलेंजिंग होगा ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली बन जाएंगे तो उनको इजीली मार्क कर दो, है ना। बहुत इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मार्क करोगे। लेकिन कोई क्वेश्चन जो बहुत चैलेंजिंग था उस पर सी लगा दो, राइट, उस पर सी लगा दो, उस पर या तो स्टार लगा दो, अपने हिसाब से एक मार्किंग चूज कर लो, स्कीम, ठीक है। अब जब सेकेंड टाइम आप रिवीजन कर रहे हो, सेकेंड रिवीजन 1 से 2 हफ्ते के बाद खुद का टाइम टेबल बनाना है, और जब सेकेंड रिवीजन कर रहे हो तो सिर्फ सिर्फ उन क्वेश्चंस को लेना है जो इंपॉर्टेंट तो थे लेकिन इजी थे, राइट। फिर थर्ड रिवीजन या फोर्थ रिवीजन में क्या करना है, अपने हिसाब से थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस को भी लेना है ना। तो इस तरह से क्या होगा, जितना आप आगे बढ़ते जाओगे, जितना आप आगे बढ़ते जाओगे, फिल्टर आउट करते जाओ। पहले रिवीजन में इजी क्वेश्चन बनाए, सेकंड इजी, और या मे बी इजी भी बनाए और ये वाले भी बनाए, चैलेंजिंग भी बनाए। अगले वाले में सिर्फ चैलेंजिंग बनाए, इजी छोड़ दिए, है ना। तो क्या हुआ, बेसिकली रिवीजन करते वक्त भी हमने स्ट्रैटेजी अपनाई। क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। रिवीजन करते वक्त भी हमने एक स्ट्रैटेजी बना ली कि भाई जो मेरा सेकेंड या थर्ड रिवीजन होगा ना, उसमें मैं सिर्फ चैलेंजिंग क्वेश्चंस करूंगा। देखो, जहां पहली बार मुझे 10 क्वेश्चन करने पड़े, उसके अगली बार में मैंने ये वाला किया, ये वाला किया, यानी कि अगली बार में 5 क्वेश्चन किए, उसके अगली बार में सिर्फ 3 क्वेश्चन किए। और हर बार इससे क्या होगा, इससे हर बार क्या होगा, मेरा टाइम ऑफ जो रिवीजन है वो कम होता जाएगा। पहली बार हो सकता है 10 क्वेश्चन करने में मुझे 1 घंटा लग गया, अब की बार 5 क्वेश्चन करने में 15 मिनट लगेगा, उसके अगली बार 3 क्वेश्चन करने में मुझे 3 मिनट लगना चाहिए, 3 से 6 मिनट बस। देख रहे हो टाइम कैसे घटता जा रहा है। तो इसको बर्डन नहीं बनाना है, पढ़ाई को स्मार्टनेस के साथ करना है। स्मार्टनेस कहते हैं इसे, कि भाई आपने अपने क्वेश्चन को क्लासिफाई कर लिया कि मुझे पहली बार में कितने क्वेश्चंस बनाने हैं, सारे बनाने हैं फर्स्ट टाइम में। तो
और बनाते बनाते सबको कैटेगराइज कर लेना है ना, सबको क्या करना है, कैटेगराइज कर देना है, इजी, वेरी इजी या चैलेंजिंग। जिसको मैंने इजी या वेरी इजी बनाया, ये भी वो क्वेश्चंस को मार्क किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मुझे लगता है कि सर ने क्लास में कराए थे या सॉल्व एग्जांपल्स में भी दिया है, एक्सरसाइज में भी दिया है, सेम तरह का क्वेश्चन, मतलब जरूर इंपॉर्टेंट होगा। तो ऐसे इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमको मार्क कर देना है इस ई लेटर से, चैलेंजिंग क्वेश्चंस को सी लेटर से मार्क कर देना है। और अगला काम क्या होगा, अगला काम होगा कि अब नेक्स्ट रिविजन्स में फिल्टर आउट करते जाना है। पहली बार में अपन ने 10 क्वेश्चन बनाए, फर्स्ट रिविजन में हमने 5 क्वेश्चन बनाए, उसके अगले क्वेश्चन रिविजन में 3 क्वेश्चन बनाए, मतलब देखो 30% हो गया। अगली बार में हाफ हो गया, फिर 30% हो गया। देखो 5 10 का कितना परसेंट होता है, 50% होता है। 50% प्रॉब्लम्स ही बनाने पड़े, अगली बार सिर्फ 30% प्रॉब्लम बनाने पड़े, तो टाइम में देखो कैसा होता चला गया, कम होता चला गया। दिख रहा है क्लास एवरीवन? ये टेक्निक समझ में आ रही है मैं क्या बात कर रहा हूं? इसके बाद ये सब करते करते या इस दौरान स्टेप का अगला फेज होता है, मेरे साथ जितने टेस्ट दे सकते हो, जब जब दे सकते हो वो टेस्ट देना है ना, उससे भागना नहीं है, टेस्ट से भागना नहीं है, टेस्ट का मुकाबला करना है। कई बच्चों को क्या लगता है, सर मेरी तो पढ़ाई नहीं हुई है, मैं टेस्ट कैसे दूं, छोड़ देता हूँ ना, क्या करता हूँ, स्किप करता हूँ टेस्ट। अरे अगर टेस्ट स्किप करोगे तो पहली चीज तो आप डर गए, आपने दिखा दिया कि ऑफ फियरिंग, राइट, लेकिन अपन को इसको निशान को हटाना है, फियर को, है ना, तो जितने टेस्ट दे सके उतना बनाना है। और दूसरा क्या होगा, अगर प्रिपरेशन नहीं भी है और आपने फिर भी टेस्ट दे दिया तो क्या होगा, कम से कम यू विल फेस योर चैलेंज, अपने डर का मुकाबला होगा, आप अपने डर का मुकाबला करोगे, तो जिससे क्या हो जाओगे, आप स्ट्रांग बन जाओगे। आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन ये तो बहुत इजी था, काश मैं पढ़ाई कर लेता, चलो ठीक है आज ना घर जाके एकदम अच्छे से इस पेपर को दोबारा सॉल्व करूंगा, है ना। तो टेस्ट का 9 स्टेप का पार्ट ए तो टेस्ट है, और दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है जो भी टेस्ट या जो भी क्वेश्चंस नहीं बने ना, यही सही असली आपकी लर्निंग होने वाली है। ध्यान से सुनना, जो भी क्वेश्चन मुझसे नहीं बने, मुझे क्या करना है, अब इन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करना है, सॉल्व चैलेंजिंग क्वेश्चंस या सॉल्व ऑल द चैलेंजिंग क्वेश्चंस ऑफ टेस्ट अगेन। राइट, और मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला कॉपी बनाने कहा है जिसमें अपन को सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखने हैं। तो अब ये क्वेश्चन जो अपन से नहीं हिले ना टेस्ट में, इन क्वेश्चन को कहाँ ले जाना है आप, उस फॉर्मूला कॉपी में। तो आई हैव टू अपडेट माय फॉर्मूला कॉपी। क्लियर हो रहा है सबको? तो एग्जाम के एक दिन पहले भी आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला कॉपी अच्छे से रिवाइज करके आना है, मतलब इसी के क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व कर लेना है, भले कोई दिक्कत नहीं। तो ये फॉर्मूला कॉपी क्या है, अपने आप में आपके लिए एक होली बुक है। क्या है, एक होली बुक। मतलब पहले तो एचसी वर्मा और डीसी पांडे थी, लेकिन उसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं, क्या क्या बना के क्या क्या बनाओगे। तो ये आपको एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करनी है या उसी दिन रिवाइज करनी है, फॉर रिविजन बिफोर एग्जाम। तो दिस बुक इज for revision before एग्जाम। लिख लो सब लोग इस बात को कि हमें क्या करना है, इस बुक को या इस फॉर्मूला कॉपी को एग्जाम के एक दिन पहले या एग्जाम के दिन रिवाइज करना है। क्लियर हो रहा है सबको, स्ट्रैटेजी क्लियर हो रही है, टेस्ट को कैसे हमको फोकस करके चलना है ना। और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। पता है क्या होता है, आई विल टेल यू वन ग्राउंड रियलिटी। इस फेज में ना हमारे दिमाग में 4 तरह के नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि यार मेरा टेस्ट में तो 40 में से 4 आया, 40 में से 8 आया, यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा, चलो छोड़ देते हैं। इस तरह के थॉट्स दिमाग में आते हैं। तो हमको अगर उन थॉट्स का मुकाबला करना है ना, हमको अगर उन थॉट्स से ऊपर उठना है, तो वी हैव टू सेल्फ मोटिवेट आवरसेल्व्स। यानी कि मुझे कहना है आई कैन एंड आई विल, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मतलब कम मार्क्स आना इज ओके, है ना, इट्स नॉट अ क्राइम, इट इज अ
पार्ट ऑफ द प्रोसेस। क्या बचपन में जब पहली बार चलना सीखे थे तो एक ही बार में चल गए थे क्या? बचपन में जब साइकिल चलाना सीखे थे तो कभी गिरे नहीं थे क्या? हर बच्चा गिरता है। हर बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो गिरता है। तो अगर मार्क्स कम आ रहे हैं ना तो अपने आप को बोलना है कि इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, राइट? आई एम अ विनर, ये बोलना है जोर जोर से, सिर्फ सोचना नहीं है। इसको अपने कॉपी में फर्स्ट पेज पे लिख दो, फॉर्मूला कॉपी में। ये जो भी मैं लिख रहा हूं मुझे सबको इसकी फोटोग्राफ भेजनी है, ठीक है, ऑन द ग्रुप आज ही। क्या? इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, राइट? कम मार्क्स आना या ज्यादा मार्क्स आना, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आई एम अ विनर, आई एम क्लियरिंग, जो भी आपके एग्जाम का नाम है, जब जैसे आप जेई मेंस क्लियर करना चाहते हो, जेई मेंस, आप चाहते हो मैं एडवांस क्लियर करूं, एडवांस, आप चाहते हो कि मैं नीट का पेपर क्लियर करूं, राइट? तो नीट, जो भी आप एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हो उसका नाम, राइट? और फिक्स करो किस ईयर में क्लियर करना चाह रहे हो। तो जैसे आपके लिए अगर ईयर है 2022, तो आई एम क्लियरिंग या आई हैव क्लियर्ड, जो भी आप लिखना चाहो, आई हैव क्लियर्ड जो भी एग्जाम विथ गॉड्स ग्रेस, विथ गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा को मिला लो इसमें, राइट? दैट इज गुड ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड को मिक्स कर लो अपने लिखने के तरीके में। थैंक यू, एडवांस में थैंक यू करना। देखा हमने प्रेयर में हम कैसे बोलते हैं, पहले से थैंक यू बोलते हैं, बिफोर गेटिंग एनीथिंग पहले से ही थैंक यू बोलना। तो ये चीजें आपके कॉपी के फ्रंट पेज पे लिखी होनी चाहिए। और डरना नहीं है इस बात से कि कोई दोस्त देख लेगा तो क्या सोचेगा, मम्मी देख लेगी तो हंसेगी, नहीं, सब लोग खुश होंगे, आपसे इंस्पायर होंगे कि अरे वाह राहुल ने ऐसा लिखा है, यार आपका दोस्त सोचेगा यार मुझे भी लिखना चाहिए, अरे वाह चैतन्य इतना पॉजिटिव सोचता है, यार मुझे भी लिखना चाहिए। तेजस के दोस्तों ने एक दिन देख लिया, हो सकता है तेजस के सामने मजाक उड़ाएं, लेकिन पीछे जाके ना अपनी कॉपी में भी लिख लेंगे घर पे, बोलेंगे वाह यार तेजस इतना पॉजिटिवली अपने एम को क्लियर कर रही है, मुझे भी करना है। महेश के दोस्त भी आके देखेंगे, पहले हंसेंगे, महेश का मजाक उड़ाएंगे सामने, लेकिन बाद में सबके सब आपको फॉलो करेंगे। तो अगला आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए? आई इंस्पायर अदर्स, दूसरों को कॉम्पीट नहीं करना है, आई इंस्पायर अदर्स, इंस्पायर करना है ना? आई इंस्पायर अदर्स एंड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर्स, एंड टेक इंस्पिरेशन, हमको दूसरों से इंस्पिरेशन लेनी भी है और दूसरों को अपने अच्छे कामों से इंस्पायर करना भी है, ठीक है? फॉर या इन टर्म्स ऑफ ऑल गुड हैबिट्स, ठीक? ये लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है? सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा या मेरा लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? इसको लिखना पड़ेगा, ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट है। So I inspire others and I take inspiration from others in terms of good habits. ये लिख लो अपनी कॉपी में आज ही, ठीक है? शाम तक मेरे पास आ जानी चाहिए। मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मुझे सबकी कॉपी में देखना है फ्रंट पेज पे। फ्रंट पेज ऑफ योर फॉर्मूला कॉपी शुड कंसिस्ट ऑफ दिस, ठीक है? और भी कुछ अच्छे एम्स हैं, ड्रीम्स हैं, है ना? तो वो भी लिखो। जैसे जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैं इंजीनियर बन जाऊं, ये एग्जाम क्लियर करके क्या होगा? इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, बेस्ट इंजीनियर बन के दिखाओ, बेस्ट डॉक्टर बन के दिखाओ, राइट? तो आपका एक अगला, इसको कहते हैं अफर्मेशन, ये जो चीजें है ना ये कहलाती है अफर्मेशन, दीज आर योर फ्रंट पेज अफर्मेशन। मतलब जब भी आप अपनी फॉर्मूला कॉपी देखो, सामने दिखना चाहिए आपको, आपका लक्ष्य याद आना चाहिए कि मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूं, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आई एम, और बनूंगा नहीं, आई ऑलरेडी एम, ऐसा लिखना है। आई एम वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स या बेस्ट डॉक्टर्स, आई एम वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स, बेस्ट डॉक्टर्स, जो भी आप बनने का एम कर रहे हो, राइट? डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाटएवर, राइट? व्हाटएवर यू आर एमिंग फ्रॉम नाउ, उसको लिखो, राइट? और यहाँ पे एक चीज क्या जोड़ देनी है? भगवान जी की कृपा, विथ गॉड्स ग्रेस। सब कुछ आदमी खुद से नहीं करता है ना, डेस्टिनी भी एक फैक्टर होती है। तो विथ दैट डेस्टिनी बाय योर साइड, विथ गॉड्स ग्रेस बाय योर साइड। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हैं, मेरे में तो इतनी काबिलियत ही नहीं है कि मैं ऐसा कर पाऊं। तो आप में काबिलियत बन जाएगी,
अगर आप अभी होशियार आपको लगता है नहीं हो तो बन जाओगे, अगर आपको लगता है कि अभी तैयारी नहीं है तो हो जाएगी, राइट? तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सीइंग इट आउट लाउड टू योरसेल्फ। हर दिन सुबह उठो, मिरर में देख के बोलना है आज से कुशल को कि कुशल, यस यू आर द विनर, यस as Kushal I have cleared JEE main, JEE advanced 2020 and God's grace is with me, thank you, thank you, thank you, राइट? तो इस पॉजिटिव प्रेयर के साथ कुशल को अपना दिन शुरू करना है, दिन खत्म करना है, दिन शुरू करना है, दिन खत्म करना है, विद इन नो टाइम। अगर आज कुशल की तैयारी नहीं है तो ऐसे लोग, ऐसे परिस्थितियां जो कुशल की वैसी तैयारी कराएं उसके पास दौड़े चले आएंगे। तो ये सब कहना इज अ वेरी पावरफुल प्रोसेस। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऑल ऑफ दिस इज अ very powerful process. It's a very powerful process, है ना? और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। जो मैं कह रहा हूं इसके साइंटिफिक आधार हैं कि जो आप कहते हैं, whatever you speak to yourself, that happens with you। अगर आप दिन रात डरते रहेंगे तो आपके सामने ऐसी और स्थितियां पैदा होंगी जिससे आप और डर जाएं। अगर आप दिन रात ये कहते रहेंगे कि आई एम द विनर, तो आप विनर बन जाएंगे। क्लियर हो रहा है सबको, है ना? और चीयरफुल विनर मतलब चिड़चिड़ नहीं करनी है, खुशी खुशी विनर बनना है, ठीक है? शांत दिमाग से विनर बनना है। तो आई एम अ पीसफुल विनर, अपने दिमाग को शांत रखते हुए आगे बढ़ना है, राइट? So I hope my points and things are clear with you, class. In case you have written all of this down, अपने hand raise करो बच्चा लोग। और अगर आपने समझा है जो मैंने कहा है, very important, जब आप लिख लो, समझ लो इस पूरे वक्तव्य को जो भी मैंने आपके सामने पेश किया है, raise your hand. Yes बच्चा लोग। As soon as you have written all of this down, raise your hand. Raise your hand. जैसे आपने affirmations लिख ली हो, अपना hand raise करो। Everyone, yeah, I'm waiting. जैसे affirmations लिख लिए हो, hand raise करो बच्चा लोग। Okay. Previous page किसी को देखना हो, so have a look. सबको लिखना है, ठीक है? ये बेसिकली एक फिल्टर मैकेनिज्म है जिसके बारे में मैंने बात किया है। ये एक फिल्टर मैकेनिज्म है कि आपने अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस घटा लिए हर बार जो नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करने, क्योंकि आपके पास चैप्टर्स भी तो बढ़ते जाएंगे ना। जैसे अब आप सपोज एक नेक्स्ट चैप्टर में है, ऑसिलेशन एंड वेव्स बना रहे हैं, आखिरी चैप्टर है, तो आप उस दिन सिर्फ ऑसिलेशन वेव्स के क्वेश्चन थोड़ी बनाओगे, काइनेमैटिक्स के 4 बनाओगे, रोटेशनल के 4 बनाओगे, वर्क पर एनर्जी के 2 बनाओगे, तो हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन बनाओगे। तो इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस घटाते जाने हैं, सिर्फ हार्ड क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने हैं, और वो तो प्रैक्टिस करनी है जो चैप्टर का पार्ट है, राइट? सो क्लास, रेज योर हैंड्स एज सुन एज यू आर डन राइटिंग ऑल ऑफ दिस। यस, यू मे रेज योर हैंड्स क्लास। यहां से जैसे ही आपने पूरा प्रोसेस लिख लिया हो, अपना हैंड रेज करो, ठीक है? I'll one by one go from first page. इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो सब लोग, राइट? या I hope this is done. I hope this is also done. आगे बढ़े, ठीक है? इसको भी, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन पे। ठीक है, अब सब लोग तैयार हो जाएंगे। ठीक है, मार्क्स से ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट है, हैंड डाउन कर लीजिए सभी लोग, थैंक यू, है ना। अब हम थोड़ा सा टेस्ट का डिस्कशन करते हैं। थोड़ा सा हम अब टेस्ट का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए सभी लोग वापस से। ओके, तो अब आई नो कि ये टेस्ट वाज नॉट इक्वल फॉर एवरीबॉडी, बिकॉज कुछ बच्चों के कुछ लेक्चर्स मिस हो गए थे नेटवर्क इश्यूज की वजह से, या कोई ना कोई रीजन था, बट कोई बात नहीं, ये एक प्रिलिमिनरी टेस्ट था, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है, अपने आप से कंपेयर करना है और सीखना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सो आई विल ओपन द टेस्ट पेपर, राइट। सो just a second class. All right, so I think now I have the paper in front of me. Just a second. Okay, so let's start off everyone with the discussion. ठीक है, या ओके, तो या गो अहेड, है ना। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन था, अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, है ना, इन टाइम टी। ठीक है, आपको ए बी डिस्टेंस दिया था और टाइम दिया गया था, स्पीड पूछी गई थी। ठीक है, सब लोग डेटा लिख लो अपने पास, ये ए बी की वैल्यू लिख लो सब लोग, एवरीवन, फ्रेश कॉपी में या आपकी लेक्चर कॉपी में ये लिख लो। टेस्ट डिस्कशन हेडिंग डालो, लिखो टेस्ट 1 डिस्कशन हेडिंग डालो। क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ डेटा लिखो, ए बी की वैल्यू लिखो और टाइम की वैल्यू लिखो। लिख लिया बच्चा लोग? अब देखना आप ही लोग सॉल्व करते जाओगे, ठीक है, मतलब मैं बैकग्राउंड में रहूंगा, आप बनाते चले जाओगे। देखो मैं आप ही लोगों से बनाऊंगा, या आप और आप सबसे बन जाएंगे। ठीक है, स्कोर की अभी चिंता नहीं करनी है बच्चा लोग, स्कोर की पहले चिंता नहीं, पहले सही जवाब की चिंता करते हैं। ठीक है, अभी आपको अपने आप अपना स्कोर पता चल जाएगा, मैंने मार्किंग स्कीम तो दिया था ना आपको, तो अपने आप स्कोर पता चल जाएगा। मार्किंग स्कीम यहाँ देख लो, आप लोगों के लिए मार्किंग स्कीम दी हुई थी, शायद इसमें नहीं है, बट आप लोगों के पेपर में थी, राइट। लिखा हुआ था कि कैसा आपका पेपर है, हर सही जवाब पे +4, गलत जवाब पे -1। तो ठीक है, आप लोग अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिए। आई एम टेलिंग यू ऑल योर राइट आंसर्स। 1 का ऑप्शन है डी, यानी कि नन ऑफ द अबव, राइट। आगे बढ़े क्लास। देन बलून वाले क्वेश्चन का, लेट्स सी इफ द आंसर इज विजिबल, या तो आपके पास इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, यस, सो यू हैव आंसर इज 6%, राइट। आगे बढ़ते हैं क्लास, नेक्स्ट वन। तो फॉर दिस वन क्वेश्चन नंबर जिसमें आपको बताया गया था, अच्छा ये आप लोगों के लिए हो सकता है क्वेश्चंस शफल्ड रहे होंगे, राइट, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस का टाइप देख लो। जो ये प्रेशर और वॉल्यूम वाला क्वेश्चन था, है ना, इसके लिए ऑप्शन इज ए, जहां पे आपको ग्रीन टिक दिख रहा है। आई होप सभी लोग ध्यान दे रहे हैं, हर क्वेश्चन के राइट पर आपको यहाँ पर एक ग्रीन टिक दिख रहा होगा, यहाँ देखो, राइट। तो दिस वाज आंसर वाज 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पर आपको जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोस पूछे गए थे, राइट, तो इसके लिए आंसर है, लेट्स चेक, इसके लिए आंसर है 1। ठीक है, फिर जो आपके पास फोर्स वाला क्वेश्चन था, ax + bt, इसके लिए आंसर है, सर एक मिनट, पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपके पॉइंट्स, और हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्यूशन के साथ डिस्कस करेंगे।
हो सकता है कोई ऑप्शन गलत भी हो, ठीक है, वील टेक दैट थिंग इनटू अकाउंट, ठीक है, हो सकता है ऑप्शन गलत भी हो, कोई बात नहीं, अभी उसको फोकस नहीं करना है, रुक जाओ। अब यहां लिखो सभी लोग, ये जो f इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी वाला क्वेश्चन था, इसके लिए आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राइट। तो अभी मार्क्स से ज्यादा फोकस हम स्ट्रैटेजी भी करेंगे, जहां पे आपको स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ या स्मॉलेस्ट मेजरमेंट पूछा गया था, आंसर था 1.5 mm, 1.5 mm, ठीक है। अच्छा, फिर जो आपसे सवाल पूछा गया था अबाउट x एंड y, कि आपके पास x इज इक्वल टू 2.5 इंटू 3 एंड y इज इक्वल टू 2.5 प्लस 3.00, उसके लिए आंसर है 3, आंसर इज 3, राइट, जो भी सवाल था। फिर आपके पास ये पावर वाला क्वेश्चन था, राइट, इसके लिए आंसर है डिक्रीजेस बाय 5 वॉट्स, लिख लो सब लोग, डिक्रीजेस बाय 5 वॉट्स। आई थिंक इसमें अधिकतर बच्चों ने आंसर नंबर डी लिख के आया है, तो अभी मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या किया है, इसीलिए मैं आपका नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को अपने रफ शीट्स भी सबमिट करनी है, ठीक है, ताकि मैं आपकी गलती पकड़ सकूं, कहाँ गलती कर रहे हो। खैर एनीवेज, अच्छा, ये जो सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन था, बोनस क्वेश्चन है ना, इसका ऑप्शन है -1, लिख लो सब लोग, -1, इसका आंसर है -1, ठीक है, सही करने वाले को +8, गलत करने वाले को -4। अच्छा, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, जहां पे आपको क्वेश्चन में डेंसिटी और मास दिया था, आपको रेडियस का मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना था, है ना, रेडियस का मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना था, तो इसका आंसर है 200 सेंटीमीटर। इसमें भी अधिकतर बच्चे 200/3 लिख कर आए हैं, आई डोंट नो कैसे, बट देन या कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ राहुल बच्चा पूछो, कुछ बोल रहे थे, हम अभी डिस्कस करते हैं सोल्यूशंस, हो सकता है आपने जो किया हो वो सही हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मेरे ऑप्शन सही हो आपके गलत हो, दोनों अपन केस मान के चलेंगे, ठीक है, उस पर चिंता मत करना। और कार्तिकेय स्कोर की चिंता मत करो, सबके अभी हम डिस्कस करेंगे तो आपको अपना स्कोर अपने आप मिल चुका होगा अब तक, राइट, तो डिस्कस करेंगे और भी क्लियर हो जाएगा, राइट, ओके। हाँ बोलो बच्चा, कुछ पूछ रहे थे, राहुल बोलो। सर वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट था ना, उसमें 1 कैसे होगा, 2 होना चाहिए ना। डिस्कस करते हैं, आते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वी डोंट नो राइट नाउ, वील कम टू इट, ठीक है, डोंट वरी, ओके। तो वील वन बाय वन टेक द क्वेश्चंस, ठीक है। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक मैन ने ट्रैवल किया, उसका डिस्टेंस पता है 5 प्लस माइनस 0.01 मीटर्स और टाइम है 2.5 प्लस माइनस 0.03। चलो अब इसके क्वेश्चन को, सवाल को देखते हैं, ठीक है, देखो तो क्या दिया हुआ है। अच्छा राहुल तुमसे ही शुरुआत करते हैं, डिस्टेंस बोलो कितना लिखा हुआ है राहुल। 5 प्लस माइनस 0.01। यस, और टाइम बोलो। 2.5 प्लस माइनस 0.03। ठीक है, ये मीटर्स में था डिस्टेंस और टाइम है सेकंड्स में, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या पूछा गया है, स्पीड पूछी गई है, राइट। यस सर। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हम लिखते हैं सपोज स्पीड को v से, तो d/t ऐसा लिख सकते हैं क्या राहुल। यस सर। है ना, इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब मुझे बताओ कि एक बार ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया, अब मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, इसके बाद मुझे स्पीड निकालनी है, तो क्या कैसे निकालोगे, सबसे पहले ये बताओ। सर वैल्यूज पुट कर देंगे। कैसे करोगे, यहाँ क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिस्टेंस कितना दिया है, एक्चुअल डिस्टेंस 5 है ना, और उसका मीन एब्सोल्यूट एरर कितना दिया हुआ है 0.01, आया ना राहुल। यस सर। टाइम की एक्चुअल वैल्यू कितनी दी है 2.5, 2.5 और उसका मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा टी कितना दिया हुआ है 0.03। 0.03, ठीक है। अब इससे हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले स्पीड का एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, बोलो क्या हो जाएगी 5/2.5, हाँ या ना राहुल। यस सर, व्हिच इज इक्वल टू 2।
हाइट इज 2 इक्वल टू 2, ठीक है, सॉरी स्पीड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बोलो अब मुझे ध्यान से सोच के बाद बताना, डेल्टा वी कैसे आएगा राहुल? सर डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। है ना, ऐसे ही होगा पक्का? यस सर। ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा अब ये देखो। एक बात बताओ राहुल, क्या हमने ऐसा कुछ देखा था क्या? देखा था क्या ऐसा कुछ? यस सर। क्या लगता है क्यों देखा था? सोचो सोचो, ताकि यहाँ अप्लाई कर सके। सिमिलर लग रहा है? ये दोनों सिमिलर लग रहा है कि नहीं यस एक दूसरे सर। से? तो यहाँ हमको क्या क्या पता है बताओ, डेल्टा डी पता है क्या? बोलो, डेल्टा डी पता है? यस सर, डेल्टा टी पता है। यस डी पता है? सर। हाँ या ना? यस सर। क्या हाँ सर डेल्टा पता टी है। पता है? हाँ सर पता है। क्या स्मॉल टी भी पता है? हाँ सर पता ठीक है वो है। भी। अच्छा वी निकल गया क्या? हाँ वेलोसिटी वी आ गया था। वी आ गया, तो ये भी पता है, तो क्या निकल जाएगा अब? सर डेल्टा वी निकल आएगा। क्लियर हुआ हाँ सर अब क्लियर। कि डेल्टा वी का ये फॉर्मूला आपको क्यों दिया गया था? इसीलिए तो दिया गया था ताकि आप इस फॉर्मूला को लगाओ और आंसर निकाल लो। इसीलिए देखो मैंने आप लोगों के लिए जो टेस्ट दिया उसका पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ था कि बेस्ड ऑन द कवरेज ऑफ सिलेबस इन द क्लास। तो क्लास से हट के कुछ आया ही नहीं। ये किया था कि नहीं हमने राहुल? हाँ सर किया। अब बनाएंगे तो बन जाएगा, इसके बाद तो गलती नहीं होगी ऐसी। नहीं सर नहीं होगी गलती, अभी बन जाएगा। चलो ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट कार्तिकेय को लेते हैं। कार्तिकेय अगला क्वेश्चन ट्राई करो। एक एक हर बच्चे से आई कैन रैंडमली आस्क टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। ये सोच के घबराना मत कि मुझसे नहीं बना, कोई बात नहीं, नहीं बना तो अब बन जाएगा, ठीक है? आई एम हियर, इसीलिए तो मैं हूं, ठीक है? अगला क्वेश्चन, हाँ सो इसको रीड करो कार्तिकेय, बलून वाला क्वेश्चन। A balloon is in the form of a sphere. A child decides to puncture it in a way that air starts leaking from it slowly. The value of its diameter reduces from एक मिनट बच्चा, देखो क्लास, तो अब हमें क्या दिया गया है कि आपके पास एक बलून है, ठीक है? वो एक स्फीयर के फॉर्म में, हाँ। एक अब बच्चा क्या सोचता है कि मैं स्फीयर में छोटा सा होल कर दूं, उससे क्या होगा, हवा बाहर आने लगेगी और उस स्फीयर का जो साइज है वो घटता जाएगा। आगे पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। the value of its diameter reduces from 10 centimeter to 9.8 centimeter in the next 5 seconds. ठीक है, आगे क्या लिखता है? सॉरी, By how क्या लिखता है? by how much percent does its volume changes in the given time? Okay, by how much percentage does its volume change in the given time? So let's say by, so actually it should be changed, है ना? So by how much percentage does its volume change in the given time? अब क्या हमारे पास वॉल्यूम और डायामीटर के बीच का कोई रिलेशन है क्या? बाय द वे, हाँ कार्तिकेय, क्या मेरे पास Yes, sir. या फिर वॉल्यूम और रेडियस का रिलेशन है क्या? Yes, sir. बोलो क्या होता है, स्फीयर की वॉल्यूम रेडियस के टर्म्स में कैसे दी जाती है, बोलो? 4/3 pi r cube. एक्सीलेंट बच्चा, v इज इक्वल टू 4/3 pi r क्यूब। अच्छा मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बोलो तो कार्तिकेय, क्या क्या दिया हुआ है? कि रेडियस कितना था? 10 था। Sir, एक मिनट क्वेश्चन देखो। रेडियस 10 था और उससे कितना हो गया बाद में, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 9.8। हाँ या ना? Yes, sir. आर इनिशियल, ये कैसा हो गया? आर फाइनल। तो रेडियस कितने से घट गया राहुल? रेडियस कितने से घट गया कार्तिकेय? Sir, 0.2. 0.2 से घट गया। तो इसको मैं सर डायमीटर Yes, sir.
आम आम, यही तो बात है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करने वाले थे आपके लिए, क्रॉस। फिर से देखो एक बार, फिर पढ़ो क्या लिखता है कार्तिक, क्या घटा है इस। अच्छा क्या सर कोई और भी डायमीटर बोलेगा इन द बैकग्राउंड, मैं जिस बच्चे से बात कर रहा हूँ सिर्फ वही बोलेगा, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि कोई गलती हो सकती है, लेकिन उसको गलती को गलती रहने देना है अंटिल आई रिवील इट। हाँ क्या लिखता है देखो, पढ़ो। सर डायमीटर रिड्यूस हो हाँ, रहा है, रेडियस नहीं। डायामीटर रिड्यूस होगा, रेडियस थोड़ी रिड्यूस हो रहा है सर, ठीक है। तो वही ले लेते हैं जैसा बोल रहे हो। तो वी विल टेक सर, क्योंकि ये डायामीटर है इसीलिए लेट अस टेक रेडियस। कैसे चेंज हो रहा होगा, वैसे जिसकी भी ऑब्जर्वेशन थी एक्सीलेंट है ना, लेकिन अभी मत बोलो, जस्ट दैट है ना, आपको मौका मिलेगा, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो आ रहा है दैट इज बेसिकली डेल्टा डी है ना, डेल्टा डी है ये, करेक्ट कार्तिकेय? यस सर। अच्छा अब मैं एक और चीज क्या कर सकता हूँ, रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस कितना होगा बोलो, 5, और यहाँ कितना आ जाएगा बाद में, कितना हो गया 4.9, हाँ या 4.9। ठीक है। यस इसी की वजह से डेल्टा आर कितना आ गया, 0.1, -0.1 इनफैक्ट कम हुआ है ना, ठीक है। यस सर। ठीक है, और ये था -0.2। अब हम क्या v और r के बीच में जो रिलेशन दिया है, क्या इस रिलेशन के जरिए कैन वी फाइंड आउट द फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम या फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि हमको चेंज पूछा जा रहा है ना शायद। देखो क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछता है, चेंज पूछा जा रहा फ्रैक्शनल चेंज है ना, चेंज पूछा जा रहा है। तो अब देखते हैं कि हम चेंज कैसे निकाल सकते हैं। चेंज निकाल सकते हो क्या इससे, हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या कार्तिकेय? देखो यस सर। क्या क्या पढ़ा है कि अगर z डिपेंड करता है किसी दूसरे वेरिएबल a पर और उसके साथ कोई कांस्टेंट है, तो यहाँ कांस्टेंट कौन से हैं, 4/3 पाई, हाँ या ना, और वेरिएबल कौन सा है यस r, सर। हाँ या ना। तो आर। मैं क्या लिख सकता यस हूँ, डेल्टा v बाई v इज इक्वल टू बोलो 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा r 3 बाय r, टाइम्स ऑफ डेल। यस सर। हाँ या ना। तो यस सर। अब अगर ये डेल्टा r बाय r है, ठीक है, अब यहां से एक स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी देखना और खुद भी समझोगे। मैं ना अब अपन ऐसा करते हैं कार्तिकेय कि डायामीटर को लिखते हैं रेडियस के टर्म्स में। डायामीटर इज 2 टाइम्स द रेडियस, राइट और रॉन्ग? यस यस राइट। तो व्हेन डायामीटर इज 2 टाइम्स द रेडियस, I can write delta d upon d is equal to delta r by r, हाँ या ना। कांस्टेंट को क्या कर यस देते सर। हैं कार्तिकेय, कांस्टेंट को क्या कर देते हैं, इग्नोर, हाँ या ना। यस सर। याद आ रहा है, देखो जैसे यहाँ पर यस हमारी सर। वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रही थी, रेडियस पे, तो हमने फॉर्मूला में किसको इग्नोर कर दिया, 4π/3 को इग्नोर किया कि नहीं, हाँ या ना। यस तो इसी यस तरह से जब आप डायामीटर और रेडियस के फॉर्मूला से उनके चेंज वाले फॉर्मूला में जाओगे तो इस ट्रू को नजरअंदाज करोगे कि नहीं। यस सर। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा कि भाई डेल्टा डी बाई डी डालूं या डेल्टा आर बाय आर डालूं, आंसर कैसा आना चाहिए, सेम। आंसर कैसा आना चाहिए, सेम, हाँ या ना। यस ठीक है, सर। तो अब इस फॉर्मूला में डेल्टा आर बाय आर की जगह में डेल्टा डी बाय डी भी डाल सकता हूँ या जो भी इच्छा हो, ठीक है। तो अब डाल दो, क्या लिखोगे, लिख बताओ, 1.1/5 या -0.1/5, हाँ या ना, यस सर। या फिर 2/10 जो भी चाहो, ठीक है, या 0.2/10। सो हमारे पास वॉल्यूम थी 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से आया डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा डी अपॉन डी विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 0.2 होल बाय 10, राइट। ये उसकी इनिशियल वैल्यू थी, यस सर। ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं, अब क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा v बाई वी कितना हो जाएगा, 0.6/10, राइट। ये Yes. क्या है, ये क्या है यार कार्तिकेय, व्हाट डिड वी गेट हियर,
मीन मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं, मीन रिलेटिव एरर। दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, हाँ या ना? और एक बार जब मेरे पास फ्रैक्शनल एरर आ गया और परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इनटू 100। क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर। क्लियर अच्छे से? यस सर। बच्चा लोग अगर सबको क्लियर है तो हैंड रेज करो। ये वाला क्वेश्चन अगर सबको क्लियर है तो हैंड रेज करो। लेट मी नो इफ द सेकंड क्वेश्चन इज क्लियर। इनफैक्ट ये दोनों क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो गए तो हैंड रेज करो, इफ नॉट देन पूछो। सर ये बलून वाले क्वेश्चन में मेरे को जरा डाउट है। हाँ बोलो बोलो बच्चा, पूछो। सर ये आपने z इक्वल टू ए बी लंबा चलेगा। लिखा है, उसके बाद से कुछ समझ में नहीं आया है सर पिछले पेज में। देखो मैंने ये किया है सिंपल। आपने ये पढ़ा है कि नहीं राहुल? इफ z इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a पावर a इंटू b पावर b अपॉन c पावर c, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा z इंटू डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाय a प्लस b टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाय b प्लस c टाइम्स ऑफ डेल्टा c बाय c लिख सकता हूँ कि नहीं? सर माइनस आएगा ना, माइनस डेल्टा सी बाई सी। हाँ ठीक है, लिख लो, माइनस लिख लो, ऐसा लिख सकते हैं, राइट? हाँ सर। लेकिन हाँ सर। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम डिपेंड कर रही है। हाँ सर। पे किस पे डिपेंड कर रही है? रेडियस पे। किस पे डिपेंड कर रही है? डायमीटर बस। देखो 4/3 पाई आर क्यूब में फॉर्मूला में वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रही है? हाँ, हाँ इसमें क्यू आर पे है ना? तो अगर डिपेंड कर रही है आर पे तो बस वही तो फॉर्मूला हो गया। जैसे यहाँ पर z था वैसे हमारे पास यहाँ v हो गया, जैसे यहाँ a था वैसे हमारे पास r हो गया। बस हमारे क्वेश्चन में b और c है ही नहीं, तो जब b और c नहीं है तो उसको हटा दो इस फॉर्मूला से और बाकी जस का तस लगा दो। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा r बाय r, हाँ या ना? हाँ सर, समझ गया। इजी तो है, क्लियर है कि नहीं? चैतन्य बच्चा क्लियर हुआ? यस सर, समझ गया। राहुल क्लियर है ना? यस सर, समझ गया। ठीक है, चैतन्य बच्चा। सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए ना, क्लिक लेना उसके लिए। हाँ आपको मैं सारे क्वेश्चन भेज दूंगा, डोंट वरी। पहले बताओ अभी क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर। ठीक है, चैतन्य बच्चा बोलो क्लियर है क्या अब आपको क्वेश्चन? आयुष बच्चा क्लियर हो रहा है क्या? कुछ डाउट है तो पूछो आयुष। यस बोलो। क्लियर है सर। क्लियर है, ओके ओके। आयुष एक हैंड रेज का ऑप्शन है जूम में, तो आप उसके जरिए हैंड रेज कर लो जैसे ही डाउट क्लियर हो जाता है। ठीक है, चैतन्य इज आल्सो सेइंग ही इज आल्सो क्लियर। ठीक है बच्चा लोग, अब देखो नेक्स्ट सवाल। तो आई विल गिव यू ऑल द क्वेश्चंस, डोंट वरी, है ना? सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो उसकी चिंता ना करो, ठीक है? अभी के लिए आप स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लीजिएगा, राइट? सो विल शेयर नेक्स्ट क्वेश्चन विथ यू ऑल। अभी फोकस करो ऑन दी अंडरस्टैंडिंग, सब सवाल आ जाएंगे। अच्छा अब सवाल कौन पढ़ेगा? ये तेजस। तेजस इस सवाल को पढ़ लो जोर से। A special kind of equation of state gas is given as P plus A by X into V minus V by T, that is equal to E, where P is pressure, V is volume, X is distance, T is time and E is energy. The dimensions of length in the expression A, V is. ठीक है, तो तेजस इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखो मैं जो आपने पढ़ा है ना, इसको अपन एक नए पेज पर लिखते हैं और आप बताते जाओ, अपने बनाते जाओ, ठीक है? सो जितना भी बनता है, ठीक है, जरूरी नहीं है सब बने, बट देन जितना बनता है आप बोलते जाओ, आई विल मेक। तो ओके, हाँ बोलो। सब पहले वो लिख लेते हैं जो इक्वेशन दी हुई है। क्या दी हुई है? बोलो। P प्लस क्या था? पढ़ो। A by X। एक मिनट, इसको फिर देख लेते हैं। We have the equation is P plus A by X और V minus V by T, ठीक है?
b प्लस a बाय x इंटू v माइनस b बाय t, ठीक है, इज इक्वल टू e। लिख लिया। अब बोलो, अब क्या निकालना है? डायमेंशन ऑफ लेंथ, राइट? डायमेंशन ऑफ लेंथ ए बी निकाला है। डायमेंशन ऑफ लेंथ निकालना है इन ए बी, राइट? नहीं सर, तीनों की निकालना है ना शायद। देखो एम देखो, एल पढ़ो पढ़ो, क्या लिखता है? द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन द एक्सप्रेशन ऑफ ए बी इज, राइट? ओके ओके हाँ ठीक है, तो हाँ, डायमेंशन ऑफ लेंथ निकालना है एक्सप्रेशन ऑफ ए बी में, राइट? अच्छा, तो उसके लिए ए का डायमेंशन निकालना पड़ेगा और बी का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अब कैसे निकालोगे बताओ अप्रोच? सर हमें पता है कि P का डायमेंशन इक्वल होगा A बाय X के, क्योंकि वो ऐड हो रहा है। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ P, देखो क्लास में मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। जब P का हमको डायमेंशन लिखना है तो देखो मैंने उसको कैसे लिखा है। डायमेंशन मतलब ऐसा ब्रैकेट बना लो, डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू A बाय X। क्यों होगा बाय द वे, ये बताओ क्लास को। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है, बोलो क्या कहता है? कि अगर हम कोई भी डायमेंशन या कोई भी दो वैल्यूज के बीच में ऐड या सब्ट्रैक्ट का साइन लगा रहे हैं तो उन दोनों का डायमेंशन सेम होना सेम होगा। आगे बोलो। हाँ, तो अब हमें पता है P क्या है, प्रेशर, तो उसका हम डायमेंशन निकालेंगे तो हो जाएगा M L इनवर्स T इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, कैसे आया? फोर्स पर यूनिट एरिया से आया होगा, हाँ या ना? तो फोर्स क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन बोलो, MLT माइनस 2, यस सर, राइट, अपॉन एल स्क्वायर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट, फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू एक्स का डायमेंशन क्या है? एल है, हाँ या ना? राइट? यस सर। तो अच्छा, अब बोलो क्या हो जाएगा? ए का डायमेंशन विल देयरफॉर बी इक्वल टू एम माइनस, राइट? यस सर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से v का डायमेंशन बोलो, क्या b का डायमेंशन बोलो, कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम, सेम v, हमें v का पता है और t का भी पता है, तो b इज इक्वल टू vt हो जाएगा। क्या आ तो जाएगा? हो जाएगा बोलो L क्यूब t। ठीक है, अब इससे क्या? हाँ, अब बोलो आगे क्या करोगे? A और B का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डायमेंशंस भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो L में सिर्फ क्यूब है तो L की डायमेंशन 3 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा ML3T-1। तो इसलिए जो जब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि आपको L की डायमेंशन बतानी है इन द फॉर्मूला ऑफ AB या इन द डायमेंशन ऑफ AB, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3। क्लियर है अब अच्छे से? ठीक है क्लास, बाकी सबको क्लियर है क्या? क्लास, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? No, sir, it's not clear to me. I was disconnected. अच्छा, एक मिनट, जिन जिनको क्लियर हो गया वो लोग हैंड रेज करो। ओके, ठीक है। हाँ चैतन्य बच्चा, पूछो। यस बच्चा, बोलो, पूछो बच्चा। उसमें सेक्शन के हिसाब से उसमें पूछा है कि लेंथ का ये क्या होगा करके, मतलब एमएलटी के फॉर्म होगा टू वो हुआ एक्सपोनेंशियल पावर वही प्रेशर और वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में लेंथ का वही फॉर्मूला सुनो बच्चा, चैतन्य तुम्हारी जो आवाज है वो कट कट के आ रही है, तो आई एम नॉट बीइंग एबल टू क्लियरली हियर यू। इट सीम्स कोई नेटवर्क इशू है। एक काम करो, अभी इस क्वेश्चन को जस्ट का तस नोट कर लो, जो सोल्यूशन मैंने लिखा है। मैं आप लोगों को क्वेश्चंस और सोल्यूशंस दोनों दूंगा, राइट? इसको एक बार पढ़ लेना
और अगर हो सके तो अपने नेटवर्क कनेक्शन को थोड़ा सा उस पर वर्क करो। देखो कोई अगर है, इफ यू कैन कॉल somebody and ask them to talk with the network connection guys, because only they'll be able to help in this issue, right? और फिर एक बार इस क्वेश्चन को लिख लो, ना समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास की शुरुआत में फिर पूछ लो, ठीक है? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन कि मुझे आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है बच्चा, ठीक है? तो ऐसा नहीं आप नहीं पूछ सकते, आप बिल्कुल पूछ सकते हो, फिर से पूछ लो, एक बार इस एग्जाम्पल को स्टडी जरूर कर लो जो मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है? भले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? अच्छा, अब लेट अस टेक दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन लेते हैं दिशा से, ठीक है? दिशा बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाओगी, जो ये सिग्निफिकेंट नंबर्स वाला है। यस बच्चा, ट्राई करो। हाँ बच्चा बोलो। अच्छा, आई थिंक माइक्स म्यूट है, एक मिनट। हाँ बोलो बच्चा। इसमें वन सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। क्यों वन सिग्निफिकेंट फिगर क्यों? अच्छा, क्या पूछा गया है? पहले क्वेश्चन पढ़ो, आंसर नहीं, पहले सवाल पढ़ो पहले जोर से। हाँ, in the number 0.00010, how many zeros are is significant? how many zeros are significant या insignificant? क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। significant लिखा है, insignificant? significant, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले तो टोटल कितने जीरोस हैं काउंट करते हैं, है ना? तो अपने पास कितने जीरोस है दिशा? ये देखो, ये 1 राइट, ये 2, ये 3, ये 4 और ये कैसे है 5 जीरोस है, हाँ या ना? टोटल 5 जीरोस है। अच्छा, अब टोटल 5 जीरोस हैं तो सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट कैसे डिसाइड होगा? रूल्स के जरिए, ठीक है? बहुत बढ़िया। बताओ कौन सा रूल लगेगा, एक एक करके बताते जाओ शुरुआत से। ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है क्या? नहीं। ये सारे हैं क्या सिग्निफिकेंट? नहीं। क्यों नहीं है, बताओ सबको। रूल नंबर कौन सा? नहीं, नंबर छोड़ो, अपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, कोई बात नहीं। जब भी कोई नंबर डेसिमल पॉइंट से चालू होता है तो उसके बाद वाले जीरो सब इनसिग्निफिकेंट रहते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। उसके जब भी कभी कोई नंबर डेसिमल पॉइंट से शुरू होता है तो वो सारे डिजिट्स जो पहले जितने जीरोस आते हैं वो सब कैसे होते हैं? इनसिग्निफिकेंट। तो ये सारे जीरोस कैसे हो गए? इनसिग्निफिकेंट। अच्छा, फिर ये जो 1 के बाद जो जीरो आ रहा है ये सिग्निफिकेंट है क्या? हाँ। क्यों सिग्निफिकेंट है? ये वाला आखिरी वाला जीरो क्यों सिग्निफिकेंट है, ये बताओ सबको। क्योंकि अगर कोई भी डेसिमल पॉइंट है तो जो फाइनल जीरोस रहते राइट साइड में वो सिग्निफिकेंट रहते। ओके, मतलब कोई भी अगर नंबर दिया है, एक रूल ये कहता है कि उसके राइट साइड पर जितने जीरोस आते हैं, अगर कोई एक नॉन जीरो नंबर आ गया है ना, उसके राइट साइड पे कितने भी जीरोस आते हैं, और ये खासकर तब की बात हो रही है जब हम डेसिमल के राइट साइड की बात कर रहे हैं। तो डेसिमल के राइट साइड पर एक नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी जीरोस हैं वो सब कैसे होने चाहिए दिशा? कैसे होने चाहिए? सिग्निफिकेंट, हाँ या ना? ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा, वेरी गुड। इसीलिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोस विल बी इक्वल टू 1, ठीक है? अच्छा, अब ये क्वेश्चन जिसको क्लियर हो गया हमने क्या बोला और दिशा ने क्या समझाया, तो हैंड रेज करो सभी लोग। जिसको क्लियर हो गया हैंड रेज करो। जिसको क्लियर हो गया, जो भी हमने सिग्निफिकेंट रूल्स का एप्लीकेशन देखा था वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं, तो हैंड रेज करो। ठीक है, हो गया सबको क्लियर? चलो गुड, ग्रेट। क्लास, यू कैन ब्रिंग योर हैंड्स डाउन, थैंक यू। राइट, ओके। अब ऐसा करते हैं क्लास, इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, है ना, मैं आप लोगों को क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ। राइट, आई विल सेंड द क्वेश्चंस टू ऑल ऑफ यू। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से अपने पास संभाल के रखो, अपनी फॉर्मूला कॉपी में लिख लो वो सारे क्वेश्चंस जो आपसे नहीं बने। आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे, आंसर्स भी लिख लो। राइट, जो दिक्कत होगी इसके अलावा भी जो भी क्वेश्चंस नहीं बने, इनफैक्ट सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे इन द
coming classes. ठीक है? So let us meet tomorrow, same timing, afternoon, right, 1 o'clock, and we'll be starting with the revision of the questions what we have taken up. ठीक है? जो हम questions discuss कर रहे थे इसको आगे discuss करते हैं, continue करते हैं. ठीक है? Okay. Anything anyone wants to convey? कुछ बोलना है? हाँ कार्तिक, कुछ पूछना है बच्चा, बोलो. ओके ठीक है, तो आप लोगों तक क्वेश्चंस आ जाएंगे, आंसर भी आ जाएंगे, राइट? डोंट वरी अबाउट इट. मार्क्स की ज्यादा चिंता मत करना. आज जो आपको सिखाया है लर्निंग पे फोकस्ड रहना. जो बच्चा लर्निंग पे फोकस्ड है, जो हर क्लास में अपनी स्पीड पे काम कर रहा है, ऐसे बच्चे के मार्क्स अपने आप आ जाएंगे. ठीक है? तो आज की क्लास का हमारा मेन मुद्दा था आपको समझाना कि आने वाले टेस्ट से आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, आपकी फॉर्मूला कॉपी के फ्रंट पेज पे आपको कैसे चीजों को क्लियरली लिखना है, राइट? देन आप लोगों को टेस्ट का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए. ठीक है? All right class, thank you very much. Thank you for being a part of the session. Let us meet in the coming class, that is tomorrow at 1, and we'll discuss further with the questions. और जो आज स्ट्रेटेजी बताया है इसका रिविजन करना और आज से इसको अप्लाई करना शुरू करो. ठीक है? क्लास के बाद जब हम लोग सारे पेपर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, तब आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को, इन 10 क्वेश्चंस को दोबारा बनाना है और मुझे सबमिट करना है. एक बार आप ये करोगे, फिर आपके लिए वेक्टर्स का एक और टेस्ट होगा, राइट? और इसी तरह से हम अलग अलग वेक्टर्स कह रहा हूँ, सॉरी, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का एक और टेस्ट होगा. और वेक्टर्स और सभी चैप्टर्स के वीडियोस आपके लिए जल्द आ जाएंगे, जिसको आप एक्सेस कर पाएंगे ऑन यूट्यूब. आपको आज लिंक मिल जाएगी. ठीक है? आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट, सो इट्स डन. आपको जल्द लिंक आ जाएगी. ठीक है? आई थिंक आप लोगों ने भी अभी कुछ बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे थे बीच में, सब बच्चों ने फॉर्म भर दिए हैं. सो नाउ यू विल गेट द लिंक, डोंट वरी. ठीक है? ऑल राइट क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल.